welcome to the PTM podcast. Thank you very much. To everybody else, I would like to introduce Hamid Mahmood. He's the brand ambassador of Uzbekistan tourism in Pakistan. So, what can Pakistani tourists expect to see in Uzbekistan, Hamid? Actually, first of all, I would like to ask you that you ever been to Uzbekistan? Unfortunately, no, You I should. haven't. I will arrange your trip. I will make sure that I will arrange your trip, and when you go there, you will see by yourself that what Uzbekistan is I offering. would love to. Definitely, I will make sure that you will traveling soon. That's so kind of you. Yes, and about Uzbekistan, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उज़्बेकिस्तान में हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है. Acha. आप फूड लवर हैं, तो we got the best food. Let's stop here. What kind of food? किस किस्म का? Because I love, ये जो old Russian states में जी. उनको कहूँगी. जी जी जी. तो वो उधर का खाना मुझे हमेशा पसंद है. And I cook some myself Oh, as really? well. Yes. That's So what kind of food can we expect? if we are talking about a national dish, that is pulao, जैसे हमारा जैसे pulao, पुलाव. वैसे जी. And we got 100 different kind of pulaos, Oh my 100 different God. kind of. And then ये यूनिसेफ की हेरिटेज में शामिल है. The food itself. ये How pulao interesting. itself. Nice. अच्छा जी. उसके बाद आ जाएं तो हमारा समसा है, आपका हमारा समोसा है. Samosa है. जी. So many similarities. See, we have 4,500 same words in Urdu language. Can you जो imagine? हमने उज़्बेक लैंग्वेज से लिए हुए हैं. लेकिन अगर अलबत्ता मस्जिद, आईना, दुकान, ये सब लफ्ज हमारे उज़्बेक No way. I didn't know this about Uzbek language. Thank you, Hamid. जी. तो अच्छा. उसमें ये है कि first of all the food is very samsa is very famous for in Pakistani tourists because because it's a baked samsa, it's not fried. Fried, हाँ. So baked ये होता है तंदूर में क्या बात है. और fresh meat के साथ. तो that's delicious. I mean whosoever tried this they love it. उसके बाद आप आ जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी और डिफरेंट डिशेज हैं. देन अगर हम बात करते हैं टूरिज्म के हवाले से, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज की कि हमारे पास हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है. आप जी. फूड लवर हैं, वी गेट द बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड. Okay. देन इफ यू आर हिस्ट्री लवर, फ्रॉम अमीर तैमूर, Yes. Alexander the Great, Genghis Khan, then we have Thank you. Zahiruddin Babar. Yes, of He's course. from Uzbekistan. So he traveled from Andajan, which is a city in Uzbekistan, and came to this our Indian subcontinent. So he's also Uzbek. Wow. So then it's a long history. मतलब मुगल एम्पायर से लेकर और आप अमीर तैमूर तक जाते हैं. अमीर तैमूर ने लाहौर का किला फतह किया हुआ है. सही. तो वो एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है. पूरी हिस्ट्री से आप गुजरते हैं जी वहाँ अगर जाएं. बिल्कुल. और उसके बाद आप ये देखें कि चंगेज खान को अपनी जिंदगी में एक शिकस्त हुई थी. क्या एक शिकस्त हुई थी? एक शिकस्त. Defeated Okay. only once, and Wow. that was in Khorazm in Uzbekistan. Can you imagine? And that was he was beaten by जलालुद्दीन मंगूबीर. Okay. हम जब छोटे होते थे ना तो एक पाकिस्तान टीवी पे ड्रामा चलता था आखिरी चट्टान के नाम से. अच्छा. उसमें शफी साहब, and that drama was based on that story. Oh. ख्वारिज़म में जो चंगेज खान को शिकस्त हुई थी. वाह. और वो शख्सियत वो थी जिन्होंने जब वो वहाँ से जब पहले उन पर अटैक किया गया चंगेज खान, तो he ran away from there because he was defeated, and he came all the way to दरिया सिंध, and he took his horse with him in the river. Oh wow. And then he rebuilt his army and attacked again. तो मकसद इतना बड़ा हमारा, फिर ये सारा खित्ता तुर्किस्तान कहलाता था. तुर्किस्तान. जी. इसमें ये सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स. ये सारा ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था? नहीं. लेकिन ये अलग था. नहीं, ये ऑटोमन एम्पायर इसके अंदर थी. अच्छा, वही. ऑटोमन एम्पायर इसके बाद बनी. अच्छा. ये सब खित्ता तुर्किस्तान कहलाता, जिसमें अफगानिस्तान का हिस्सा भी कुछ है. खुरासान, जब कहते हैं खुरासान का इलाका, तो जी, ये जी. अफगानिस्तान का वाला का था. अच्छा. तो इसमें जो ट्राइब्स थे डिफरेंट टर्किश ट्राइब्स, टर्किश स्पीकिंग कंट्रीज, अगर आप देखें आज भी एक कॉन्सेप्ट टर्किश स्पीकिंग कॉन्सेप्ट, यस. वो ये सब लोग हैं. वाओ. ये सब इवन के उर्तुल गाजी उस्मान ये ऑटोमन एम्पायर है, इनके जो फोर फादर थे दे बिलोंग टू खुरासान. इन्होंने जब ये निकले तो कुछ ट्राइब चले गई टर्की की तरफ, जिसमें उर्तुल गाजी की फैमिली थी, आगे से ऑटोमन एम्पायर, फिर कुछ लोग चले गए अजरबैजान, कुछ जॉर्जिया और कुछ आगे से आर्मीनिया. तो ये तमाम के ट्राम जल से हैं, ये साथ ट्रैवल हुआ. तो मुझे ये बताइए हामिद कि अब अगर if I want to go there, तो क्या मुझे, how do I start? वीजा का क्या प्रोसेस है? Is it difficult? No. It's totally not difficult. Is it online? It's not online yet, but we are trying to get it online. And the embassies are in Karachi, Islamabad? Islamabad. We Islamabad. have only in consulate in Islamabad embassy है. अभी कराची का हमारा consulate नहीं है, तो
our office is providing this kind of services for anybody who's traveling to Uzbekistan from anywhere from Pakistan. Amazing. आप हमें पासपोर्ट देंगे, हम आपका वीजा लगा के आपको वापस भिजवा देंगे। मैं अभी आप- पासपोर्ट मेरे बैग में है, मैं अभी आपको देती हूँ। जी आप And- मैं कहता हूँ आप एक दफा जरूर जाएं। क्यों? मैं हमेशा अपने ट्रैवलर से ये कहता हूँ, और लोग मुझे पूछते हैं कि जी क्या खास है उज़्बेकिस्तान में। मैं कहता मुझे तो नहीं पता क्या खास है, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो आप अगले 6 महीने में दोबारा जरूर जाएंगे। अच्छा। और दैट्स हैपन। लोग हमेशा आज से 25 साल पहले जो मेरा क्लाइंट था आज भी आज वो भी ट्रैवल कर रहा है। चले, maybe I'll be one of those. Sure, why not? Yes, definitely you'll be one. One Thank of you them. so much for sharing all Sure. this information. Thank you very much. And after this podcast, I'll take more information from you. Inshallah. ठीक है? Thank you. Thank you very much.